Yeah, it got properly only. Actually, I shifted my position. मैं नीचे अपने कमरे से लेना चाह रही थी और अच्छा वहाँ पे अच्छा, अचानक लाइट कटने के चलते साथ ही साथ नेट कोई भी इश्यू डाउन नहीं हो मैडम, गया. शुरू So कर I सकते. have to shift one. यस, आई वंस अगेन Really वेलकम sorry यू for. मैडम. I'm very good. Yes, I once again welcome Thank you you, madam on behalf of MMTTC. madam, and very good afternoon to all the participants. Thank you, Good madam. afternoon, ma'am. Good afternoon, Very good ma'am. afternoon to everyone. And I am sorry for being late today. One thing I'll appreciate प्रीति मैम कि कल मेरी एक फीलिंग रही आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ. In generally post lunch session, maximum people at maximum places do feel sleepy. Yeah, But your participants were so much active and so much interactive as well. So very it's really means hats off to yes. Batch is very nice and very enthusiastic. Yes. Yes, ma'am. congratulations to all of you. मैडम इफ पॉसिबल हम आपका वीडियो अगर बंद करेंगे तो वॉइस आपकी ब्रेक नहीं होगी. अभी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है. अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है. जस्ट लेट मी ट्राई यहाँ के और नेटवर्क्स में देख लूँ. यस फुल. अब आवाज क्लियर जा पा रही है. यस 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 मैडम, नाउ फाइन. सो जस्ट Ma'am, explain please Hindi and English. okay fine sure. Thank you, ma'am. Are you participant able to see the presentation? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think it's bit late in my system only because on my system I think network is bit down over here today right now, but I'm trying to, okay, because I'm not able to see the things. Yeah, now presentation got visible. Yes, ma'am. Yes, it is visible. Yes, Okay, ma'am. thank you. So the thing is Yes, that ma'am. ki today Preeti madam has given me the responsibility to talk with you people regarding sustainable development goals. एंड अगर आपके FIP कोर्स की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अदर इन्वायरमेंटल कंसर्न है आपके जो 9 थीम्स है उसमें से एक ये पार्ट है. Before starting the thing, I would like to know from you people, what's your idea regarding this very topic, that is sustainable development goal. इसको आप लोग क्या मानते हैं या इसके बारे में क्या आइडिया रखते हैं? Ma'am, There ये are Hindi 17 specific goals. development. Those are FIP अभी जो शुरू है ना, फैकल्टी इंडक्शन. These are 17 specific goals, Yes, sir. which are successor of Millennium Development Goals मैं भेजती (MDGs). हूँ आपको. मैंने उनका अभी सेव, Very good, sir. लेकिन उनका But नाम what do you do consider it as? Means what this sustainable development goal are basically meant for? वह क्यों बनाया? ऐसा विकास जो पर्यावरण के संसाधनों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करके विकास किया जाए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए. Okay, that's the thing. So certainly you people do. Ma'am, Yeah, it yes, aims to transform the world. good, good. That's a, I would say, smarter approach to say the thing that we want to change the world. And which way we want to change them, madam? What Ma'am, exactly we see? poverty, eradicating poverty, then like not cutting the trees, Okay, being environmental removing concern. hunger. Good. The thing is that with these goals, we really want to Using change greener the. approaches. Yeah, that is the thing I was saying, that we really want to transform the world. But why we want to change that world? Whatever world we have, is it not good or is it not sufficient for the means for the developmental sake? The thing is that कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं वो हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अपकमिंग जो फ्यूचर हो इस वर्ल्ड का, इस अर्थ का और इस ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जाए. एंड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इट मीन्स कि वी वांट एन इक्विटेबल सोसाइटी. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि जनरली हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कंसर्न कहाँ से अराइज हुए थे, व्हेन देयर वाज फाइट फॉर द रिसोर्सेज. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वैसे ऐसे रिसोर्स पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती चली गई.
एंड देन वी स्टार्टेड, जब उसके कंसिक्वेंसेस सामने आने लगे, सॉरी देयर इज बिट डिस्टर्बेंस, जस्ट अ सेकंड, just a sec, I am just joining back. Yeah, hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sorry, there is good disturbance in the surrounding. ये प्लेस जहाँ मैं आई हूँ वहाँ बहुत नॉइजी है, थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। No problem, ma'am. We can hear you. Okay, sorry. The thing is that we would like to bring you to take you people to the previous era. कि अगर imagine किया जाए कि when we talk about sustainability, we talk about future, we talk about environment. The thing is that कि जब से human beings इस पृथ्वी पे existence पे आए, and we talk about life that is 4.6 billion years ago. So the thing is that environment was always there. Be it prehistoric era, stone age, modern age, environment is always there. And even this human being was there in due course of evolution with his brain size. अगर human के development की बात कह ली जाए तो we can always talk regarding कि डेवलपमेंट के साथ उसकी सराउंडिंग और उसके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आए, we can consider कि somewhere human brain is the most elastic thing कि वो प्री हिस्टोरिक एरा के इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट कर पाया और सस्टेन कर पाया, और एट द सेम टाइम जब मॉडर्न एज में उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तब भी वो सस्टेन कर पाया. You all can see the difference here on the two slides. This is somewhere stone age को डिपिक्ट करता हुआ. और दस द थिंग, अब पूरे प्रोसेस में कहा जाए कि ह्यूमन में क्या चेंज आया. ह्यूमन का एक ही सबसे फैंटास्टिक फीचर था, एडेप्टेबिलिटी. वो अपने नीड्स के अनुसार, एज पर द चॉइस, एज पर द नीड्स, एज पर द कन्वीनियंस, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ. एट द सेम टाइम ही मेड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. तो समवेयर ह्यूमन ब्रेन वाज द फैंटास्टिक इलास्टिक मटेरियल जो हर एक चीज के साथ अडेप्ट करते चला गया. एंड ब्रेन साइज की बात कर ली जाए तो यू विल फाइंड आउट कि वो जो 1600 सीसी कैपेसिटी का ब्रेन साइज प्री हिस्टोरिक मैन में भी था, और वो पूरा ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट देख लिया जाए तो कोई ड्रास्टिक या कंसिडरेबल क्वांटिटी में चेंज नहीं आया. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन साइज? बिकॉज इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस. नाउ द थिंग इज दैट कि जब हम पहले के इन्वायरमेंट की बात करते थे तो व्हाट द अर्लियर इन्वायरमेंट वाज. द अर्लियर इन्वायरमेंट, अगर डिफिनेशन की बात करें, अगर आपसे मैडम आप लोगों में से किसी एक से मैं रिमार्क चाहूँ कि व्हाट, हाउ यू विल डिफाइन इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इन्वायरमेंट, क्या डिफाइन कीजिएगा. Ma'am, it's a biotic and biotic things that are available around us. दैट्स द थिंग. और कोई? और सराउंडिंग्स. सराउंडिंग. और जब भी सराउंडिंग की बात आती है, सर्टेनली जो मैडम ने डेफिनेशन दिया, ये सबसे मोस्ट कॉमन डेफिनेशन निकल के आता है. बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मैडम. दैट इज द थिंग. सब वही बात मैं कह रही हूँ कि चाहे कोई डेफिनेशन आता है इन्वायरमेंट का, तो हम लोग जो प्रीवियस ट्रेंड था वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट को मान के चलता था, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, एंड इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स विल मेक एन इकोसिस्टम, जिसको कि आप सभी ने पढ़ा होगा सिंस हम लोग क्लास 4 ऑनवर्ड बच्चों को बताने लग जाते हैं. लेकिन विद द प्रेजेंट सिनारियो अब इन्वायरमेंट सिर्फ इतने ही दो फैक्टर्स का कंपोजिशन नहीं रह गया है. अब जब हम इन्वायरमेंट की बात कहते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन को भी अब एक रिसोर्स माना जा रहा है, एंड द इंटरैक्शन, ऑल टाइप ऑफ इंटरैक्शन. वी टॉक अबाउट, पहले क्या था, हम लोग एनर्जी एक्सचेंज को मान के चलते थे, लेकिन आज के डेट में वो रिलीजियस इंक्लिनेशंस हो, पॉलिटिकल
इंक्लिनेशन एंड grievances हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, everything is making the components of environment. So the thing is that कि depending upon these we do consider development. और जब environment चेंज होता चला गया और हम लोग डेवलपमेंट की बात करने लगे, तो डेवलपमेंट को हमने क्या माना? व्हाट इज डेवलपमेंट? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं। यस, व्हाट इज डेवलपमेंट? व्यक्ति का आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से विकास होना और भारत क्षेत्र में उन्नति करना। ओके, सो आर्थिक और Progress with facilities. हाँ, लेकिन Progress अगर in various इंटरनेट fields. दैट्स Progress वेरी in थिंग, various और जो fields now. प्रोग्रेस इन वेरियस Various fields. Whether it is technological progress in various or fields you in are talking education, about. social, there are many या वेरी aspects. फाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिस चीज में कहिए, अगर उसमें प्रोग्रेस होता है तो वी डू कंसिडर इट एज डेवलपमेंट. बट व्हाट आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट व्हेन वी विल टॉक एज अ academician on an international platforms, so we have keep certain characters or criteria through which we do determine the development index of the society or the development index of the country itself. Okay, now here comes the thing. Ki many a times when we talk about academic development, we talk about economic development, even resource utilization also becomes a parameter of development. And same is with the gross domestic production. आप feel करते होंगे कि per capita income, these are the parameters which are being internationally recognized as a development index. जैसे कि जिस कंट्री का जितना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है उसको उतना बेहतर कंट्री माना जाएगा. देन वी कम कि वो जो कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति का नाम दिया जाता है कि वी आर नाउ रिसोर्स डिपेंडेंट पीपल. तो व्हाट वी सेड कि द हायर द रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय द पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वी विल कंसिडर दैट वेरी कंट्री एज द मोर डेवलप्ड. एंड देन कि आफ्टर इंडस्ट्री के पास देखिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, तो क्या उसी क्वालिटी पे बेस्ट मान लिया जाए? तो एक नया पैरामीटर आया कि नो नो, इवन द बेटर लाइफ स्टाइल इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ अ development, isn't it? Then someone said it doesn't matter how much resources you use, if the health quality services are not good, then your country is not so developed. So health parameters. So as madam said, n number of fields or n number of parameters becomes the indicator of development. Then in the last I have mentioned GNH index. What is this GNH index? मेरे ख्याल से per capita, better lifestyle, resource utilization आप सभी ने सुना होगा. GNH भी आप सभी ने सुना होगा because आप participants, I have feel last day कि you all are very active one and well informed one. What is this GNH index? Anyone? That is also a parameter of I development. don't know. लेकिन कल के रिस्पॉन्स से मैं फील कर रही थी कि इसका रिप्लाई आप लोगों की ओर से आएगा. Happiness index. GNH. That's ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मैडम. Something related to happiness index. yeah, that's the thing. And GNH index की जब बात आती है, so you all can imagine कि how much unsatisfied we are that despite having that quantifiable things. अब तक से पर कैपिटा इनकम की बात कर ली जाए कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन से ये सारे चीजों को क्वांटिफाई किया जा सकता था. बट कैन यू जस्ट से दे दोगे ना, स्लाइड्स वाला दे दो. डन. सो व्हाट विल हैपन दैट डिस्पाइट हैविंग दीज क्वांटिफाइबल थिंग्स, हम उतने से भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं. एंड वो सारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद और आज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पास हमारी लाइफ जितनी इजी होती जा रही है, हमारे डेवलपमेंट के नीड्स भी बदलते जा रहे हैं. और अब हम लोग क्या कह रहे हैं? Despite having the salary of 4 or 5 lakh, despite being an IAS officer, despite being having 5 cars and 4 ACs and a big bungalow and everything, still a factor is lacking in the system, and that is the हैप्पीनेस. और आप देखिएगा
कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक डेवलपमेंट का पैरामीटर बन गया है. So that is also becoming a part of development. So आपको क्या लगता है कि अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा इंडिया तो टॉप में रहना चाहिए ना? क्या पोजीशन होगा हमारी कंट्री का? मैम फिनलैंड तो टॉप पर है, इंडिया का पता नहीं है, पर फिनलैंड टॉप पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक 126 में। में. इंडिया 106 या 9 पे है. वेरी ma'am. गुड. सो द थिंग अगेन 121 126 ये रैंकिंग रही है पिछले 2-3 सालों में. So the thing is that you all can imagine कि even happiness become a parameter and that आप की तो सबसे डेवलप किस कंट्री को आप ज्यादा डेवलप मानते हैं? यू ऑल नो अमेरिका का नाम ऐसे ही मुंह से निकल जाता है हर मामले में, तो उसका डेवलपमेंट पैरामीटर पहले ऊपर दिखाई पड़ता है, बीट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बीट प्रोडक्टिविटी, बीट पर कैपिटा इनकम. तो द थिंग इज दैट कि व्हेन उसके बाद किसका नाम ले लेंगे हम लोग? वर्ल्ड इंडेक्स में मैम आपकी आवाज इको हो ने रही भी है. डेवलप कर विच कंट्री जा रहा हूँ Ma'am, your voice is breaking. यस यस, जस्ट अ मिनट. सोनी मैडम, यस मैडम शुड आप आई वॉइस जस्ट ब्रेक हो रही है, तो वीडियो अगर ऑफ रखते हैं तो मे बी वॉइस क्लियर हो जाएगी. Yeah, I'll try that. I'll try that. हाँ, sure. Just give me opportunity. मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो बंद करती हूँ, शायद ये हेल्प करे. या कि यहाँ नेटवर्क पूरा है, लेकिन आज कुछ दिक्कत आ रही है. It's better. Many a time, perhaps even I am not getting response to people. It's better now. मैडम अभी भी थोड़ी ब्रेक हो ही रही है, बट यू कंटिन्यू, आई लेट यू नो. अच्छा मैं एक ओके जस्ट अ सेक आई एम just wait. मैं इस नेटवर्क से थोड़ी देर के लिए एग्जिट हो रही हूँ एंड आई विल ज्वाइन बैक विथ अ डिफरेंट नेटवर्क. ओके ओके मैडम, ओके.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Yes, madam. I'm really sorry for this inconvenience today. Actually, when I am at other place, so I am just now connecting with my mobile. Hopefully, it's done. Uh, Hopefully, now it's visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, Yes, Done. ma'am. Yes, yes, And ma'am. ma'am. even voice is clear now. Yes, ma'am. Done. Thank you. So we are moving ahead quickly. So the thing is that we are talking about that gross national happiness index also become a parameter for development. The thing is that when we got for this happiness index, what we find ki in top five, none of the countries like America, England, Britain, Germany, China, which are so called developed countries of the nation, they were not in the list at all. और अगर बात की जाए कि सबसे फास्ट देखा जाए कि इवन जर्मनी जैसी कंट्री भी जो है वो 14th रैंक पे थी और इसका इंडेक्स में टॉप करने वाला कौन सा था मैडम फिनलैंड तो आपने बताया ये तो अभी का डाटा था इससे पहले कौन सी कंट्री थी जो लगातार इसमें टॉप पे रही थी All these Scandinavian countries. ऑल द Scandinavian countries. all the Scandinavian countries, but Bhutan. Bhutan was a very small country. You all can imagine even Finland or even the Bhutan, both are such a small country with no existence at all. I would say in industrial revolutionized market. Still, this country remained first when it came to happiness index. So somewhere this feeling is there on the international platform that we have to reconsider our development parameters. अगर हिंदी में इस बात को कहूँ तो कहीं ना कहीं सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात नजर आने लग गई कि हमें अपने डेवलपमेंट पैरामीटर्स के बारे में फिर से रिकंसिडर करना चाहिए रीजन क्योंकि जो जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट वाली कंट्री जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज्यादा पीछे छूट गए हैं सो यू ऑल कैन इमेजिन कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कि as a human being, how much stable we are, how much resilience we are, and how much sustainable we are. And when this sustainability comes to the picture, then only we move towards the sustainable development. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है आप सभी को पता होगा आई डू नो एनीवन क्विकली बता दे कि वो डेफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का Meeting the needs of future generation without compromising the needs of need of the current generation. present generation very true sir so all of you are very well Botland commission ये लाया था we all do know and the thing is that कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सच में पॉसिबल है आप लोगों का पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है बिकॉज आई नो आप सभी एकेडमिशियन है देयर इज नो नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग इन द सेम हर कोई का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है व्हाट यू पीपल थिंक नहीं Definitely मैम yes. इतना पॉसिबल तो नहीं No, है ma'am. नो मैम अच्छा नो किसकी तरफ से आया क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, नाम नहीं देख पाती हूँ यस सिंधु मैडम सिंधु ओके सो मैडम व्हाई यू थॉट कि ये नहीं पॉसिबल है मैम इसमें अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो इसमें से देखो अगर देखा जाए तो पूरा देश की गरीबी तो हटने वाली नहीं है इसमें भूखमरी भी ज्यादा है शिक्षा सब समान तो नहीं होगी क्योंकि वहां पर कॉन्वेंट स्कूल है मराठी मीडियम स्कूल है तो ये पूरा तो नहीं होगा फिर जल तो पूरा सबके पास नहीं है फिर लैंगिक समस्या तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है पर्यावरण की समस्याएं हैं और जहाँ पर असमानता है जहाँ पर मतलब कि आप लेडीज है मैं जेंट्स हूँ ये असमानता कहीं ना कहीं तो हमको देखने के लिए मिल जाती है शांति और न्याय की भी संस्था नहीं है मैम
देखिए आप लोगों ने, देखिए कि आपके सामने मैडम ने मेरे ख्याल से जितने पॉइंट्स मुझे टच करने हैं, मैडम ने शायद सारी बातों को एक साथ रखा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को देखिए, एक वर्ड होता है सस्टेन। सस्टेन मतलब कि आप जो है उसी पेस को मेंटेन रखिएगा, और डेवलपमेंट एक अनदर वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है आप उससे आगे बढ़ जाइएगा, तो दैट वुड बी नोन एज डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में मुझे ये ऑक्सीमोरोन लगता है। ऑक्सीमोरोन इंग्लिश का वर्ड है, या हिंदी में इसका ट्रांसलेशन में करूं तो इसे कहा जाता है विरोधाभासी शब्द। विरोधाभासी शब्द का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे open secret, we say na कि it's an open secret. So if something is secret it can't be open, and it is open it can't be secret. हम लोग क्या कहते हैं, ये एक नया ट्रेडिशन आ गया है। द थिंग इज दैट ट्रेडिशन हमेशा कैसा होता है, पुराना। अगर वो नया है तो वो ट्रेडिशनल नहीं है, और अगर वो ट्रेडिशनल है तो फिर वो नया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुराने चल रहा है। सो यू ऑल कैन गेट इट कि वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन आवर सिस्टम। वी मैच देखते हैं ना हम लोग, और जब मैच देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आ रही है। अगर कोई चीज लाइव है तो वो रिकॉर्डेड कैसे हो सकता है, और अगर वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो इट कांट बी लाइव। बट दीज थिंग्स एग्जिस्ट। कहीं ना कहीं इट्स माय पर्सनल परव्यू, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कुछ भी नहीं बट ये एक ऑक्सीमोरोन है, एक विरोधाभासी शब्द है। और अगर सबसे लास्ट में आप लोग इमेजिन करें ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट वर्ड यू सी ओवर हियर? Many a times we say na, if we are happy we can't be married, if we are married we can't be happy. So sustainable development भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सीन प्रोड्यूस करता है। So the thing is that ये जो कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ, क्यों अराइज हुआ, और किस तरीके से, अभी किसी ने डिफाइन किया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नथिंग बट द कंसर्न ऑफ द, और rather it is being followed by the earlier being preceded by the millennium development goals. बेसिक कंसर्न कहाँ से आया, इस स्क्रीन पे एक आप लोगों को फोटो नजर आ रहा होगा, और एट द सेम टाइम नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, बट कितने लोग इस लेडी को आइडेंटिफाई करते हैं? एनीवन? एनीवन हु आइडेंटिफाई दिस लेडी? No, ma'am. नो मैम। कोई नहीं? नहीं। कहते कि आप लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, ये मैं फील करती हूँ। यू हैव गुड पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर। सो द थिंग इज दैट द लेडीज नेम इज रेचल कार्सन। और रेचल कार्सन वो जो वुमन, और मैं थोड़ा सा बैक में आप लोग को ले जाती हूँ, अगर डेवलपमेंट की बात होती है ट्रू सेंस में, तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर आप लोग रिकलेक्ट कीजिए कि फर्स्ट जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, एक तो कहा जाए कि अगर वो मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देखा जाए तो क्या कहा गया था, आग यानी कि फायर और चक्का यानी कि व्हील, ये दो चीज ऐसे बने थे जिसने कि ह्यूमन रेस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। दैट वाज वन फेज। देन केम द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कब था सर और मैडम? इट वाज ड्यूरिंग दैट 1560, मतलब 16वीं शताब्दी में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे, 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, इन द 16th century and 17th century, isn't it? So 16th 17th century में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग गई सामान की, इकोनॉमी कंट्रीज की स्ट्रांग होने लग गई। ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, द पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। माल्थस की थ्योरी आप सब जानते हैं कि व्हाट हैपेंड, द पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, और उतने पॉपुलेशन के लिए फूड का रिक्वायरमेंट था। नाउ द थिंग इज दैट अब ये जो फूड रिक्वायरमेंट था, इसके लिए एक दूसरा रिवोल्यूशन आया। व्हाट वाज दैट? ग्रीन रिवॉल्यूशन। Green revolution. So the thing is that industrial revolution being followed up by the green revolution or agricultural revolution. और agricultural revolution का जो beginning देखा जाए तो उस समय क्या हुआ था,
बहुत ज्यादा हम लोग पेस्टिसाइड्स और केमिकल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर मोड पे चले गए थे, एंड दैट्स वाई हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो गई थी. बट देयर वॉज अ लेडी नेम रचल कार्सन, एंड आई एम टेलिंग यू कि आप सभी फील करते हैं, वो कहते हैं ना कि महिलाएं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कोई भी चीज़ उनको जल्दी फील होने लगता है. मेनी अ टाइम्स आप लोग फैमिली में भी कहते होंगे कि वुमेन्स जो हैं वो बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि पहले से उनको वाइब्स आने लगता है. रेचल कार्सन वॉज ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव लेडी, एंड शी गॉट अ वाइब कि ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है इन फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, शी हैड अ फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, and the thing that was making her feel like it was none other than the chemical substance that was DDT. DDT क्या है आप सब जानते हैं, खेतों में यूज किया जाता था और आज के डेट में ये बैन हो चुका है. मगर आज के डेट में पहले फॉरेन कंट्रीज में बैन हुआ और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके बाद इंडिया में भी ये बैन हो चुका है. द थिंग इज दैट कि ये DDT जो बैन हो चुका है वो उस समय खेतों में डाला जा रहा था किस पर्पस के लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सो यू ऑल कैन इमेजिन. और बैन क्यों हो गया? कि कहा गया कि इसका इफेक्ट क्या है, हार्मफुल है, पॉइजनस है. सो यू ऑल कैन इमेजिन कि वी वे आर पुटिंग पॉइजन इन आवर फील्ड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. अपने आप में कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग सा बात है कि हम किसी सब्सटेंस में या किसी क्रॉप प्रोडक्शन में जहर डाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होगा. एंड रेचल कार्सन वॉज द लेडी हु फर्स्ट रेज दिस इशू. उन्होंने क्या एक बुक लिखा अपने सेंसिटिविटी के थ्रू जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, एंड दिस वाज द एज ऑफ 1962. 1962 में शी वाज द फर्स्ट लेडी हु अराइव द कंसर्न कि ये DDT जो है वो लॉन्ग टर्म में हमारे लाइफ सिस्टम्स पे एक बैड इफेक्ट डालेगा. नाउ कम्स लोगों में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत बातें हुई, बट नो वन टुक इट सीरियसली. लिटिल लेटर इन 1972 एक क्लब का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द क्लब ऑफ रोम. एंड क्लब ऑफ रोम वाज द ग्रुप ऑफ द पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल आई वुड से, हु वे आर कंसर्न्ड अबाउट द international or environmental concerns of the international platforms. So they come up with a book or a report that is known as Limit to Growth, and the age was 1972. You all can imagine कि आज की डेट में जहाँ 500 किताबें बिकने पे वो क्या कहा जाता है, बेस्ट सेलर्स हो जाती हैं. 1972 में इस किताब की 9 मिलियन कॉपी बिकी थी रोम में. You all can imagine कि what a hit book it was. And this book fetched the attention of international platform that we have to think about our developmental strategies. ये beginning था. मैं सस्टेनेबल, ये इतनी कहानी मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ? आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू पीपल टूवर्ड्स दैट वेरी फेज कि ये चीज अराइज कहाँ से करना चालू हुई कि वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सस्टेनेंस. जस्ट यू सी 1972 ये बुक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आई, एंड एज वी नो व्हेन एवर वी हैव अ थीसिस वी हैव आवर हाइपोथेसिस, वी हैव एंटीथेसिस एज वेल. तो इसके बाद एक और बुक आ गई थी कि नो लिमिट टू ग्रोथ. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी वोंट गो इन दैट. सो द थिंग इज दैट कि 1987 में इससे पहले जो रियो समिट हुआ, और उससे भी पहले की बात कर ले कि जब 87 में एक कमीशन लाया गया दैट इज नोन एज बर्टलैंड कमीशन. आप सभी अवेयर होंगे, नेट पे ये सारे इंफॉर्मेशन हैं. सो बर्टलैंड कमीशन ने अपनी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बाद उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पेश किया, एंड दैट रिपोर्ट वाज कंपाइल्ड इन अ बुक फॉर्म दैट इज नोन एज आवर कॉमन फ्यूचर. दैट वाज द नेम ऑफ द बुक. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो भी इन्वायरमेंट से या ह्यूमन रेस से इंटरेस्टेड रहे उसको ये बुक पढ़नी चाहिए. इट इज अ वेरी नाइस रिपोर्ट कि किस तरीके से डेवलपमेंट को इन्होंने नए डायरेक्शन में देखने का और नया डायमेंशन. द नेम ऑफ द बुक? आवर कॉमन फ्यूचर, दैट इज बीइंग गिवन बाय बर्टलैंड कमीशन. Okay, basically it is a report of a commission, but it published as a book named the Our Common Future. And this was the commission जिसने कहा क्या कि the way we are developing,
be it industrial development, be it agricultural development, be it development in population. We have to think about our parameters of development. हमें ध्यान देने की जरूरत है, and that's why they come up with the definition. Someone has already said in the session in the very beginning कि we have to meet the need of the present without compromising the ability of future generation to fulfill their own needs. Got the thing? और मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं जब अपनी बात कह रही हूँ कि मैं नहीं मानती पर्सनली, आई एम सेइंग इट पर्सनली, आई एम नॉट गिविंग इट अ जनरलाइज स्टेटमेंट, कि मैं क्यों कहती हूँ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे फुलफिल होगा। कह तो देते हैं लोग, जरा आप लोग इमेजिन कीजिए कि जो अभी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो यू ऑल कैन इमेजिन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। और ये जो डाटा है, यू कैन सी 98 का डाटा है, टुमारोज वर्ल्ड के नाम से आया है, मैक्लॉरेन का डाटा है। मैक्लॉरेन इज अ कंपनी विच गो फॉर द सर्वे, और वो क्या कह रही है कि हमारे अभी के डेवलपमेंट रेट को अगर हमको मेंटेन करना है, तो जो हमारा अभी का नीड है, we will need 8 more earths, 7 more earths for the metal, 3.5 more earth for the woods. For mineral requirement we will require 2 more earth, and for the land requirement we will need 1.5 more earths. So you all can imagine कि अगर हम इसी डेवलपमेंट पेस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेरे पास अगर टोटल देख लिया जाए तो 12 और अर्थ का रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी आ गया. So do we have that many earths? We have only one mother earth, isn't it? And that's why this call for sustainable development came to the picture, that since we don't have these many earths to fulfill our need of minerals, forest, wood, even energy, so that's why we have to remain confined to this one earth only. And for maintenance or for development we have to act differently. अब एक बात आती है, बांग्ला अगर जो कोई लोग होते तो वो जानते, एक बांग्ला में कहावत कही जाती है, सब दोष नंदो घोष. इट मीन्स कि यू मेक वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एनोमली, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन कार्बन. अभी हम लोग बात करते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ग्रीन हमेशा हाउस गैस। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन रिस्पॉन्सिबल? कार्बन. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन हो जा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन. रोड पे इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? कार्बन. ओजोन लेयर में छेद हो गया, किसने कर दिया? कार्बन. वी टॉक अबाउट कार्बन कार्बन कार्बन. द थिंग इज दैट कि क्या सच में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल, व्हीकल इमिशन, ये सब सबकी जो बात है, I will bring to light means certainly carbon could be, but is the carbon is major culprit? That's a big question. और आप सभी को मैं ये कहूंगी कि इस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है, because somewhere what my personal feeling is that carbon trading is not a what to say, it is just an eye wash. आप सबने कार्बन ट्रेडिंग के बारे में आप लोग कितने लोग अवेयर हैं? Yes, ma'am. कार्बन ट्रेडिंग. सो यू कैन इमेजिन सर कि एक कंट्री जो एक लिमिट से ज्यादा कार्बन एग्जिट कर देती है इन्वायरमेंट में, उसको क्या करेगी? वो दूसरे कंट्री से अपने लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेगी, इजंट इट? यही कॉन्सेप्ट है. सो यू कैन इमेजिन कि अगर एक कंट्री ज्यादा पॉल्यूशन करती है और दूसरे कंट्री को कहती है कि आप ग्रीनरी मेंटेन करें, इज इट एवर पॉसिबल? अगर वो ज्यादा पॉल्यूशन कर दी तो वो पॉल्यूशन तो इसी इन्वायरमेंट में जा रहा है ना. दूसरा कंट्री करे या ना करे, इस इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है ना. सो कार्बन ट्रेसिंग इज नथिंग बट आई डू कंसिडर it as another mode of economic development only. It is an eye wash by the developed countries. और बेसिकली किया क्या गया था इस स्कीम में कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपना डेवलपमेंट का जो स्पीड है उसको मेंटेन करेंगे, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे? वो अपने आप को नहीं डेवलप करे, सो दैट टोटल इमिशन ऑफ कार्बन विल रिमेन कांस्टेंट. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि अपने आप में कितना अनजस्टिफाइड डिमांड है. देन मेथड ऑफ ट्रेडिंग, इसके बारे में नहीं जाएंगे बिकॉज कार्बन डेवलपमेंट जो कार्बन ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ different topic. We can discuss about that in any different class if we get chance. The thing is that
वी टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है तो क्या हो जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात आ जाती है उसके साथ। क्यों आया ये नीड में, क्यों आया? जब क्लाइमेट चेंज का असर हम लोग देखने लग गए, जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखने लग गए, और ऊपर से पॉपुलेशन इंक्रीज के चलते हमारे लिए रिसोर्सेज कम पड़ने लग गए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने लगा, देन वी थॉट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द थिंग इज दैट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आई टॉक जो पहला हुआ था कंसर्न, दैट वाज इन 1972 बाय द स्टॉकहोम। और ये सब सारे डाटा जो है या रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेट पे बहुत इजीली हैं। आई थिंक जितने लोग इन्वायरमेंटल साइंस के हैं वो ऑलरेडी वेल अवेयर हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं तो दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल। मैं बहुत क्विकली इन सब स्लाइड्स को परसुएट करूंगी क्योंकि मैं उस फोकस पे आना चाहती हूँ कि हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द थिंग इज दैट 1972, you all can imagine, industrial revolution has already happened, agricultural revolution has already happened, and now the world's population was increasing very fastly, and there was huge gap in developed countries and अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। एक लंबा गैप हो गया। हमें कहा जाता है ना, हम लोग वो दूसरी दुनिया वाले देश कहे जाते थे। जो डेवलप्ड कंट्री थे वो एक नया मतलब नई दुनिया के देश कहे जाते थे। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि देयर वाज vast और a very large gap between the group of countries। वर्ल्ड में एक डिवीजन क्रिएट होते जा रहा था। एंड 1972 में सबसे पहले ये बात आई कि ये जो हमारा डेवलपमेंट का तरीका है, कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और आप सोचिए कि ये किसी देश का कंसर्न नहीं बना, ये ग्लोबल एजेंडा बना। देन 1972 के बाद 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वो बर्टलैंड कमीशन को बनाया। बर्टलैंड कमीशन 1982 में अपनी रिपोर्ट लेकर के आती है, और उसके बाद क्या आता है 20 साल के बाद रियो समिट 92 जो कि कहाँ हुआ था, रियो द जेनेरियो में। अब रियो द जेनेरियो में जब ये कन्वेंशन हुआ, आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये सब डिटेल्स आप सभी अवेयर भी होंगे, बट स्टिल द थिंग इज दैट कि ये पहला सबसे सीरियस समिट माना गया, सबसे सीरियस कॉन्फ्रेंस माना गया, जो कि पहली बार कंसर्न हुआ कि हमको डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी देखना है। हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करनी होगी। रीजन समझ में आ गया था, क्योंकि रिसोर्सेस घट रहे थे। जिस तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बढ़ रहा था, वी हैव स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई 1992 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रियो दी जेनेरियो में रियो समिट हुआ, जिसको कि अर्थ समिट भी कहते हैं। और इसके चलते इसका आउटकम क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज पे एक कन्वेंशन बना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बना, पहली बार फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स लाए गए, और 21 एजेंडाज बने। 21 एजेंडा बने टू सेव आवर इन्वायरमेंट। जब रियो समिट हुआ उसके 10 साल के बाद, 92 में हुआ था, 10 साल के बाद 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। आप सभी वेल अवेयर होंगे इससे, आई डू नो। और क्योटो प्रोटोकॉल रियो समिट के बाद ही 2000 में हमारे पास, हम लोग जो अपना 21 एजेंडा लेकर के चले थे, उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एंड वी केम अक्रॉस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। 1997 में जो रियो समिट हुआ उसमें पिछले 10 साल का असेसमेंट किया गया कि अर्थ समिट से क्योटो प्रोटोकॉल तक आने तक में क्या क्या डिफरेंसेज हुए हैं, वर्ल्ड में हम लोगों ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उससे हमारे डेवलपमेंट पे और हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर आया है। एंड यू विल सी कि 1992 के कन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि 2-3 और कन्वेंशन आए, 94 में, 98 में, 2001 में, लेकिन everyone got on the international platform, सारी सरकारें
सारी दुनिया की सरकारें ये कंसर्न शो करने लगी कि हमको सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं देखना है, अपने को अपने वाइल्ड फ्लोरा और फाउना को भी देखना है, हमको स्पेस में ओजोन लेयर के लिए भी कंसर्न होना है, हमको अपना वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखना है, और हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी केयर करना है। एंड दैट्स वाई अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की जाए, मैंने कहा कि एक लार्ज गैप आ गया था डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो अगर जब कभी भी आप, यू ऑल डू नो कि अगर वर्ग भेद होगा, जिसको कहते हैं क्लास डिफरेंस, तो क्लास डिफरेंस होगा तो क्लास के बीच में टसल भी होगा, फाइट भी होगी। और हम लोग जितनी भी क्रांति देखते हैं, चाहे वो रूस की क्रांति हो, बोल्शेविक क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, जितना भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, यू विल सी कि देयर वाज अ क्लास डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई देयर वाज फाइट अमंग द पीपल्स। सो द थिंग इज दैट हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 8 चीजों को लेकर के बना था। एंड जब इन गोल्स के थ्रू हम लोग प्रोसीड कर रहे थे, पॉवर्टी इसमें भी थी, हंगर का कंसर्न था, एजुकेशन का कंसर्न था। 2015 के बाद एक रिव्यू किया गया। 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, 15 में एक टारगेट लिया गया था, 15 के बाद रिव्यू किया गया, और 15 के रिव्यू के बाद वी केम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जैसा किसी ने बहुत शुरू में ही बताया, अब हम लोग पहला 15 जो 8 गोल्स लेके चल रहे थे, नाउ वी केम टू 17 गोल्स। और बहुत क्विकली अगर रीड आउट किया जाए तो पॉवर्टी नहीं चाहिए, हंगर नहीं चाहिए, सबके लिए गुड हेल्थ चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन चाहिए, सबके लिए क्लीन एनर्जी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी चाहिए, इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद सस्टेनेबल कम्युनिटी बननी चाहिए। सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज होना चाहिए, क्लाइमेट को केयर करना है, वाटर को केयर करना है, लैंड रिसोर्स को केयर करना है, और सबसे लास्ट के ये जो 2 पार्ट्स हैं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जब कभी भी peaceful situation रहेगा, then only we can develop. And whenever there is a difference in the society, अमीर गरीब का डिफरेंस रहे, मेल फीमेल का डिफरेंस रहे, डाइवर्सिटी में आपस में कंफ्लिक्ट होता रहेगा, तब तक we can't proceed towards the development. And that's why peace and justice became the important component for the development. ठीक है, लास्ट में क्या कहा गया, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्यों पार्टनरशिप फॉर द गोल्स? मैंने कहा ना कि कार्बन ट्रेडिंग में क्या कहा गया कि एक कंट्री अपना ग्रोथ करता रहे, दूसरे अपने को कम कर ले। मतलब क्या कि मैं अपनी फैक्ट्री लगा लूं और कोई अपने कलीग को मैं कह दूं कि आप एक फॉरेस्ट, मतलब आप प्लांटेशन ड्राइव लर्न कर लीजिए, तो क्या इससे डेवलपमेंट हो जाएगा? नो, वी हैव टू अचीव द गोल्स टुगेदर विथ। एंड दैट्स वाई अगर इन सभी गोल्स को अगर 3 कैटेगरी में बांटा जाए, जितने भी मैंने नाम लिए, तो यू विल फाइंड आउट कि हमारा जो इन्वायरमेंट का पहले का कॉन्सेप्ट था बायोटिक एंड अबायोटिक, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब हम लोग जब इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी हैव 3 कैटेगरीज। वी हैव टू लुक फॉर द इन्वायरमेंट, we have to look for the economy, and we have to look for the society. It means if we want to achieve a sustainable goal, there should be parity or a good association between people, planet and profit, जिसको कि 3P का फॉर्मूला कहा गया। और 3P के साथ 2P और लगा दिया जाए तो वो क्या है? पीस एंड पार्टनरशिप। जिसको कि हम लोग जो बेसिकली साइंस में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बच्चों को बताते हैं, तो व्हाट वी कॉल इट एज 5P रूल्स, 3P रूल्स एंड 5P रूल्स। इफ पीपल, planet and profit, it means people means society, economy and infrastructure, and planet, it means the environment. If these 3 will remain equitable, viable and bearable, then only we can achieve the sustainable goal. Is it clear to everyone? Yes, madam. Now Yes, ma'am. अब
तक की तो कहानी मोर और लेस इतना भजन सब कोई का सुना हुआ होता है। और ये 3P मैंने कहा या 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट कहें, बट द थिंग इज दैट कि क्या ग्रोथ सिर्फ इतने से अचीव कर लिया जाएगा? और ये 3P रूल या इसको 3 पिलर रूल्स जो कहते थे, ये मोर और लेस इन स्लाइड्स में मैंने उसी को डिस्क्राइब किया है। अब जो नया पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट का, ये जो मैंने बातें अभी कही इसमें सेम इन स्लाइड्स में वही चीज लिखा हुआ है। व्हाट इज सोशल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट फॉर पीपल, सभी कम्युनिटी के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। अब जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है वो क्या कहता है? सोसाइटी मूविंग फ्रॉम इक्वालिटी टू इक्विटी, दिस इज द न्यू डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। और वो जो 3 पिलर जो थे सोसाइटी के, वो अब 4 पिलर्स रूल में बदल गए हैं। डन। अब मुझे आप में से कोई बताए, ये जो मैं 2 स्लाइड्स डील कर रही हूँ, इक्विटी टू इक्विटी एंड 4 पिलर रूल, किसी के पास कोई आइडिया सो दैट आई कैन मूव माई टॉक इन दैट डायरेक्शन? व्हाट इज दिस इक्वालिटी एंड इक्विटी इज? So, ma'am, equity is to facilitate equality is those treating who are everyone with equally. underdeveloped. One by one, yes sir. Equality is treating everyone equally, and equity is differential treatment who are in need of that. Okay, मैडम आपकी तरफ से? Ma'am, to facilitate those who are underdeveloped. That means equity. That means equity. Yeah, that's it. It means that providing the resources as per the needs. Earlier we thought we have to make everyone equal. If everyone will remain equal, there would be no conflict in the society. अगर अमीर गरीब का भेद मिटा दिया जाएगा, साक्षर और निरक्षर का भेद मिटा दिया जाएगा, तो we will get a good society where everyone is on equal footage. लेकिन हम पूरे प्रोसेस में एक बात भूल जाते हैं। द थिंग इज दैट व्हेन सोसाइटी इज नॉट इक्वल, पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, पहले से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो व्हाट विल हैपन? सपोज इफ यू आर देयर इन योर क्लासरूम विथ टॉफीज इन योर हैंड एंड आपके पास 50 बच्चे हैं और आप 100 टॉफी लेके गए हैं, बेसिकली एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? अगर इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोस टॉफीज, सबको 2-2 जाएगा मैम। सबको 2-2 दे जाना चाहिए था। और ये बहुत ही क्या कहा जाएगा, बायस्ड नहीं होगा, प्रीजुडाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबको एक तरीके से ट्रीट किया, सबको एक जैसा देखा। और मैंने क्या फील किया कि आई हैव डन जस्टिस टू द क्लासरूम, आई वॉज नॉट पार्शियल, आई वॉज नॉट बायस्ड, isn't it? तो कहीं ना कहीं इससे हम जस्टिस कर रहे हैं। बट जरा इमेजिन किया जाए कि उस क्लास में देयर वाज स्टूडेंट जिसके घर के फ्रिज में टॉफियां पड़ी रहती हैं और उसको आप जिससे वो जब चाहे तब खा सकता है। एक बहुत रिच फैमिली का बच्चा है, दूसरा एक मीडियम क्लास की फैमिली का बच्चा है जो ऑफ एंड ऑन जिसको टॉफी मिलती है, हमेशा तो नहीं, और तीसरा एक बहुत ही पुअर चाइल्ड है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे में जब मैंने सबको 2-2 टॉफियां दी, तो वो बच्चा जिसके फ्रिज में टॉफियां पड़ी रहती हैं और वो देखता भी नहीं है, उसको वो 2 टॉफी क्या प्रोवाइड करेगी? वुड इट गिव हैप्पीनेस टू हिम? Not at all. No. No, ma'am. It would be all like useless concept, isn't it? And then जिसको कभी कभार मिलता था, he will feel happy about it and he will enjoy the toffee. And the person वो जो पुअर फैमिली का बच्चा था, जिसको कि शायद फूड भी बहुत मुश्किल से मिलता है, टॉफी मिलने का सवाल ही नहीं है, और जब उसको वो 2 टॉफी मिली होगी तो हाउ ही माइट हैव फील्ड और शी माइट हैव फेल्ड elated, isn't it? So somewhere कहीं ना कहीं अगर मैं अनबायस्ड हो जाती और ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करती और उनको मैं 10 टॉफियां दे देती, तो वो कहीं ना कहीं मेरे रिसोर्स का, मेरी टॉफी का सही यूटिलाइजेशन होता कि नहीं? अब जरा सा हम लोग आ जाए अपने टॉपिक से, मैं हटते हुए इस बात को कह रही हूँ। आप सभी जानते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में टाइम टू टाइम ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साइकिल दी जाती है, मेनी टाइम्स लैपटॉप दिए जाते हैं।
द थिंग इज दैट कि एक तो मैं मान के चल रही हूँ इस फैक्ट को कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर तो जो रिच है और जो सो कॉल्ड रिच है वो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज ही नहीं रहे हैं। मगर सोचिए कि अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है कि वो सभी स्कूल गोइंग बच्चों को साइकिल दे रही है, यू ऑल कैन इमेजिन कि देयर इज अ किड जिसको कि कार से उसका सोफा ड्रॉप करने जाता है, देयर इज ए स्टूडेंट जिसको कि उसके पेरेंट्स स्कूटर से ड्रॉप करने जाते हैं, देयर इज अ पेरेंट जो कि अपने बच्चे को साइकिल से ड्रॉप करने जाता है, एंड देन देयर इज अ स्टूडेंट जो कि अपने घर से पैदल निकल के स्कूल तक जाता है। अगर सबको साइकिल मिल गई, व्हाट विल हैपन? उस रिच बच्चे के पार्किंग स्पेस में पड़ी पड़ी वो साइकिल सड़ जाएगी। एक बच्चा जिसको जो पैदल जाता था उसका लाइफ का सिनारियो बदल जाएगा। माइट भी कि वो अपने घर के पास का स्कूल छोड़ के अच्छे स्कूल जाने लगेगा। माइट भी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना होने के चलते जिसने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी वो अपना पढ़ाई परस्यू कर सकेगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस वेरी केस? Though the government is not behaving justifying, आई वुड से कि अगर वो नीड को आइडेंटिफाई करके रिसोर्सेस प्रोवाइड करता तो क्या होता? रिसोर्सेस का ज्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता। एंड दिस इज ऑल व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। इट मीन्स कि आइडेंटिफाई द नीड, जिस कंट्री का जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम अपने मतलब उस कंट्री मेंस को उस तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। नाउ द कम, ये आप लोग देख लिए होंगे, और ये जो मैंने लास्ट में एक पिक्चर दिखाया है, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर आई वुड से, कि कहने को तो हम लोग कहते हैं लेकिन असल में कंडीशन क्या होती है? मूव करना होता है इक्वालिटी से इक्विटी की तरफ, लेकिन रियलिटी क्या है? समता और समानता। जिसके पास था उसको और दे दिया जाता है और जिसके पास नहीं रहता है उससे और खींच के उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है। दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है मैम, दैट्स द इंडिया थिंग, में दिस यही इज द प्रॉब्लम है। वे, दिस इज द थिंग। और अब की जो बात की जाए कि इक्वालिटी इक्विटी की बात मैंने कही थी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं दैट इज नॉट जस्टिफाइड। when we talk about equity it is somewhere justified, and then comes the concept of justice, and that's why ये pictures मैंने क्यों लाया है यहाँ पे आप लोगों के लिए, just to make you people think one more कि the thing is that कि if a barrier is there and someone is tall, he can see the field without any support, certainly he doesn't or she doesn't needs any support, and the one who is short he requires extra support। लेकिन what my say is कि who are the we, who are the governments, who are the this so called leaders of the society who are going to provide you the support? There shouldn't be any barrier, everything should be open to all, and accordingly everyone has to take their own share as per their own needs। हिंदी में इस बात को मैं इसलिए कह देती हूँ, किसी ने कहा कि आप हिंदी में भी बोलिएगा, कि मैं कहती हूँ कि कोई बैरियर रखा ही क्यों जाए, और हम क्यों किसी को माने कि यू आर द प्रोवाइडर। हर रिसोर्स सबके लिए ओपन हो और जिसका जैसा नीड हो वो अपने नीड के हिसाब से अगर रिसोर्सेस लेगा, देन ओनली आवर सोसाइटी विल गो फॉर अ जस्टिफाइबल और सस्टेनेबल सोसाइटी। पर क्या सच में ऐसा होता है? जरा सा इमेजिन कीजिए, कोविड काल हम सभी ने झेला है, लेकिन जिस दिन, याद है सर या मैडम, आप सभी लोग ये रिकलेक्ट कीजिएगा कि इधर टीवी पे अनाउंस हुआ कि कल लॉकडाउन रहेगा, और पहला काम हम लोगों ने क्या किया था? राशन जमा कर। गुड, दैट्स द थिंग। पहला काम, हर जो भी वो राशन शॉप्स होते हो, वेजिटेबल शॉप्स होते हैं, एवरीवन रैन टू दैट शॉप। क्यों? We were driven by fear कि पता नहीं फिर कब खुलेगा, isn't it? So the thing is that till human or mankind are being fear driven, कभी भी हमारी सोसाइटी जस्टिफाइबल सोसाइटी नहीं हो पाएगी। अगर हम अपने हक की चीजें सिर्फ रखें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन होता क्या है, वी आर फियर ड्रिवन, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं,
और उसके चलते हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा एक्यूमुलेट करने लगते हैं कि वी मूव टूवर्ड्स टेकिंग द पार्ट ऑफ अदर पीपल्स। एंड दैट्स वाई ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात आती है कि इसको क्यों एज ए डेवलपमेंट पैरामीटर देखा गया, जरा सा एक थॉट दीजिए कि एक सटनली अगर हम अपने लालच से बाहर निकलेंगे तब ऐसा सोच पाएंगे। लेकिन सर अगर मेरा नेबर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, my brother is not happy, can I live happily? सोसाइटी में अगर दुख है तो क्या हम सुख से रह सकते हैं? एंड हियर वी हैव टू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज आज के जो हालात है वो क्या है, अगर अगला दुखी है तो और ज्यादा अच्छा लगता है, अगला गरीब है तो अब हम लोग को अपने रिचनेस पे प्राउड फील होता है। एंड दिस इज वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट द चेंज इन सोसाइटी। हमको अपने डेवलपमेंट्स के थॉट्स बदलने होंगे। एंड हियर आई वुड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच अबाउट विच आई वांट टू टॉक मोर, दैट इज द 4 पिलर्स। अब तक हम लोग जो बात किए थे 3 पिलर्स की, वी टॉक्ड अबाउट 3 थिंग्स, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। अब इसमें एक नया पैरामीटर जुड़ गया है। इकोनॉमिक क्या था, प्रॉफिट, इन्वायरमेंट क्या था, प्लैनेट, और ह्यूमन क्या था, पीपल। अब इसमें एक नया पैरामीटर जुड़ा, दैट इज द सोशल। व्हाट इज दिस 4th पिलर? कौन मुझे बताएगा ये 4था पिलर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये नया फॉर्म। एनवायरमेंटल। नो मैडम, इन्वायरमेंट में तो ऑलरेडी हम लोग नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर चुके हैं। मैम लास्ट 2 goals, 16th and 17th goal. Very good, and that 16th and 17th goal is peace, prosperity and at the same time partnership. That's it. लेकिन सर इस गोल को देने का एक अलग रीजन है, ये पिलर को ऐड करने का एक रीजन है। The thing is that कि अगर ये जो 3 की हम लोग बात करें, वो 17 में से जो 15 गोल थी वो तभी अचीव हो सकते हैं जब हम लोग पीस, प्रोस्पेरिटी और पार्टनरशिप के साथ प्रोसीड करें। सोशल गोल इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, दिस इज द 4th पिलर। इस फोटो को आप लोग कितने लोग जानते हैं? कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा? इस फोटो को आप मोर और लेस सबने देखा है, आप सबों ने देखा है, कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा? आइसबर्ग। इट्स एन आइसबर्ग। दिखता है बट 3/4 ऑफ द पार्ट इज डाउन, जो हम देख भी नहीं पाते हैं। हाँ, दैट्स द थिंग। थैंक यू मैडम, यू आइडेंटिफाइड। और इसको हम लोग कहाँ देखे थे, याद है? इससे किसको रिकलेक्ट कर पाते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं? टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी मैडम, टाइटैनिक मूवी देखना, टाइटैनिक मूवी में हम लोग सबने इस आइसबर्ग को देखा था। एंड व्हाट द स्टोरी बिहाइंड, इवन आप लोग टाइटैनिक मूवी देखी होगी तब भी, और वो पूरी कहानी तो आई थिंक सब कोई जानता है कि जो आइसबर्ग था ऐसा नहीं था कि द वन हु वाज टेकिंग दैट पर्टिकुलर शिप, सब लोगों को वो दिखाई पड़ गया था, उस पॉटर को भी दिखाई पड़ गया था, जो जहाज को चला रहा था उसे भी दिखाई पड़ गया था, द पायलट ऑफ द शिप आई वुड से। लेकिन उन्होंने क्या फील किया था? व्हाट एग्जैक्टली दे फील? दे सेड वो कि टर्न करना चाह रहे थे। नहीं दे सेड कि नहीं, अगर आप It इमेजिन, might be smaller. जब पॉटर ने सबसे पहले आकर के वो इंफॉर्मेशन दिया था कि आइसबर्ग दिख रहा है, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन क्या था? अरे ये तो छोटा सा आइसबर्ग है, इसको तो हम लोग आराम से क्रॉस कर जाएंगे, इजंट इट? और जब तक वो रियलाइज किए कि सच में ये आइसबर्ग इतना बड़ा है या इतना इम्पैक्टफुल है, जब तक वो टर्न करना चाहे तब तक देर हो चुकी थी। एंड देन दे स्ट्राइक्ड इट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ऑल डू नो, इजंट इट? द थिंग इज दैट द सेम इज आवर 4th पिलर, जिसको कि सोशल के रूप में रखा गया है। एंड द 4th पिलर इज व्हाट? द 4th पिलर इज एनवायरमेंट, कल्चर, सोशल कल्चर, संस्कृति संस्कृति संस्कृति। बिल्कुल सही सर, द कल्चर इज द 4th पिलर। और ये जो हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने में 3P या 5P का रूल अप्लाई करते हैं,
द कल्चर इज बिकमिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेम। और ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है कब? आफ्टर पोस्ट कोविड। बेसिकली कल्चर क्या होता है? अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन के कल्चर की बात करें तो क्या होता है? द फूड ऑफ दैट कंट्री, द फेस्टिवल ऑफ दैट कंट्री, द म्यूजिक मीन्स फोक्स लोर, ठीक है, उसका लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म, इसी को ना कल्चर कहते हैं। उनका पहनावा, उनके ड्रेसअप्स कैसे हैं, उनका फैशन स्टाइल क्या है, उनका फेस्टिवल्स क्या क्या है, दिस इज द कल्चर। तो कल्चर को इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत क्या है? वो एंड वाई मैंने इसको आइसबर्ग से क्यों कंपेयर किया है कि आप ऊपर से देखें तो ये आइसबर्ग जैसा नजर आ रहा है, लेकिन व्हेन यू विल सी डीप इनसाइड, व्हाट यू विल फील, society is an important part of our whole developmental process, or rather it is an important integral part of the existence of mankind itself. क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर जो है वही हमारे लिए कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप करता है। ये हमारा एक के दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा हो, एटीट्यूड कैसा होगा, एल्डर के साथ हमको कैसा रहना चाहिए, लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ हमारे कल्चर में इंटीग्रेटेड रहता है। आप देखते होंगे कि कहीं हाथ मिलाने का कल्चर है, कहीं पैर छूने का कल्चर है, कहीं आप बोलने का कल्चर है, कहीं अपनी इच्छा से शादी करने का कल्चर है, कहीं पेरेंट्स के परमिशन से चिल्ड्रन को भी रेज करने का, सब सोसाइटी का अपना अपना डाइवर्स कल्चर है। एंड दिस इज व्हाट दे हैव फोकस्ड पोस्ट कोविड, दैट एवरी कल्चर, एवरी टाइप ऑफ कल्चरल सिस्टम और कल्चरल हेरिटेज शुड बी टेकन केयर ऑफ, शुड बी मीन्स उसको क्या कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कि हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके चलना है, वैसे ही हम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके चलें। एंड व्हाट्स हैपेंस, द थिंग इज दैट कोविड में आपने फील किया होगा ना कि हाथ मिलाने का कल्चर क्या हो गया, साइडलाइन लग गया। पुरानी पिक्चरों में आप देखते होंगे या हमारे पुराने जमाने में, और अभी भी गांव में ये कल्चर एग्जिस्ट करता है कि आप घर के बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने चप्पल और जूते बाहर उतार देते हैं और आते साथ पहला काम क्या करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तब आप किचन में एंटर करते हैं, इजंट इट? लेकिन हमारी शहरी व्यवस्था में, अर्बनाइजेशन में हम लोग ये भूल चुके थे। कोविड बैक टू उस कल्चर चला गया था, हम लोग पैर छूने का कल्चर भूल चुके थे। कोविड ने हम लोग हैंड शेकिंग की तरफ मूव कर गए थे। कोविड ब्रिंग अस बैक टू दैट कल्चर, एंड दैट्स व्हाई हर एक कम्युनिटी के पास, हर एक इंडिजिनस कम्युनिटी के पास उसके अपने नॉलेज सिस्टम, अपने कल्चरल सिस्टम होते हैं। एंड नाउ एवरी कल्चर इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ हेरिटेज, एंड वी हैव टू कंजर्व दिस हेरिटेज, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस हेरिटेज। और इसके लिए सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, यू विल फील कि इवन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, टीकेडीएल का नाम आप में से किसने देखा है? और कल जैसे मैंने कहा था, आप लोग आईकेएस को एक बार विजिट कीजिएगा। सिमिलरली आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू पीपल टू गो थ्रू द टीकेडीएल। टीकेडीएल क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस। हाँ, दैट इज अ डाटाबेस। बेसिकली इट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? इसमें हमारे जितने भी पुराने मेडिसिनल प्रोसेसेस थे, चाहे वो आयुर्वेदा हो या यूनानी पद्धति हो, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। हमारे जितने कल्चरल प्ले सिस्टम थे सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। हमारी जितनी कल्चरल ट्रीटमेंट पद्धति थी, आप लोग सब जानते होंगे, और झारखंड बहुत रिच है, इवन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी मैं नाम लूंगी, कि जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, यू विल फील, आप लोग सुनते होंगे कि उस गांव में एक ऐसा रहता है फैमिली जो कि फलाना चीज का इलाज करता है। हैदराबाद में एक फैमिली का, वो आप लोगों ने सुना होगा ना, जो अस्थमा का इलाज करते हैं। That particular knowledge system is confined to them only, and this is what our traditional knowledge digital library aims for. What exactly it seeks कि आपकी सोसाइटी में जो भी ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए
और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए. So just like the conservation of biodiversity, we have to conserve the indigenous and traditional knowledge as well. That's the thing. और अगर ह्यूमन मैनकाइंड के डेवलपमेंट की बात की जाए, बहुत क्विकली मैं ये कहूँगी, एक 4 लाइन का पोयम बहुत शायद आप लोगों को अपील करे. When the last tree is cut, when the last river is dry, when the last fish is caught, then we realized that money just can't be eaten. आप सभी ज्यादा कनेक्ट होइएगा अगर हिंदी में मैं इसी बात को कहूँ कि अगर वो आखिरी पेड़ भी कट जाएगा, वो आखिरी नदी भी सूख जाएगी, उस अंतिम मछली को जो पकड़ लिया जाएगा, क्या तब हमें एहसास होगा कि पैसों को खाया नहीं जा सकता? So you all can imagine this poem, this 4-line poem gives a message that we have to be sensitive and sensible towards our resources, towards our feeling for the mankind and towards humanity. And that's why when we say that we have to live with the consequences of what we did rather than we have what we didn't do, इट मीन्स कि अब हम लोग डेवलपमेंट के उस फेज में हो गए हैं कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिवॉल्यूशन आया और उसका कंसिक्वेंस भुगत रहे हैं. लेकिन अब क्लाइमेट का जो स्थिति है कि हम लोग अगर स्टेप्स नहीं लेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो अब हम लोग उसका कंसिक्वेंसेज भुगतेंगे. क्या किया था उसका कंसिक्वेंस तो भुगत चुके, वो बात बीत गई. अब हम किस चीज का कंसिक्वेंस भुगतेंगे? जो हम नहीं करेंगे. अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे, देन वी हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेज. एंड दैट्स व्हाई बराक ओबामा हैज वंस वेरी राइटली, स्पेशली मैं इसको कोट करती हूँ कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरी थिंग? अगर आप सभी रियलाइज करें कि हम सभी के परिवारों में ऐसा होता होगा कि हमारे पेरेंट्स क्या कहते होंगे कि हम लोग जब बच्चे थे ना, तब इतनी बारिश नहीं होती थी, तब इतना ठंडा नहीं पड़ता था, या तब इतनी गर्मी नहीं थी. Isn't it? अब हालात क्या हो गए हैं कि that time has passed. अब ऑलरेडी गर्मी बढ़ने लग गई है एंड नाउ वी हैव टू टेक इनिशिएटिव. क्योंकि अब हमने इनिशिएटिव नहीं लिया तो व्हाट विल हैपन? ग्लोबल वार्मिंग का असर और उसका इम्पैक्ट हमको झेलना होगा. सो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? बहुत क्विकली टुवर्ड्स द एंड मैं आप लोग के सामने 2 एग्जाम्पल पेश करूंगी कि कहने को तो मैंने कह दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक ऑक्सीमोरोन लगता है, लेकिन वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर फुल ऑफ पोटेंशियल एंड वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू मेक द वे. रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग अगर हम लोग इंटेंशनली कोशिश करें. पहला एग्जाम्पल कौन है? बेन एंड जेरी. बेन एंड जेरी के बारे में या बी कॉर्प कंपनीज क्या होती है, कोई जानता है? एनीवन जिसने इसके बारे में सुना हो बी कॉर्प कंपनीज? नो मैम. नहीं मैम. ओके, बेसिकली इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है बी कॉर्प कंपनीज के साथ. कहा जाता है अ कंपनी विथ अ पर्पस. तो सारी कंपनी तो विथ अ पर्पस ही होती है कि नहीं? पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. लेकिन बी कॉर्प कंपनीज वैसी कंपनी नहीं है. बेन एंड जेरी इज एन इंटरनेशनली फेमस आइसक्रीम ब्रांड. आइसक्रीम्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. ये फेमस क्यों है और इससे बी कॉर्प कंपनीज का क्या लेना देना? इन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई उसका फंडा क्या था कि इन्होंने उस कंपनी में सोसाइटी के ऐसे लोगों को रखा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर से या प्रिजन से आते थे. इट वाज अ लोकलाइज्ड कंपनी कि हम अपना प्रोडक्ट वहां बनाएंगे और प्रोडक्ट भी कहाँ सेल करेंगे? अपने नेटिव प्लेस में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा. अब जो प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारी कंपनीज क्या करती है? अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी का मालिक प्रॉफिट रख लेता है और उसका छोटा सा हिस्सा बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज को दे देता है. दैट्स इट, कहानी खत्म.
लेकिन बी कॉर्प कंपनीज ने क्या कहा, प्रॉफिट जो है वो पूरी सोसाइटी में इक्वल बटेगा। इट मींस कि जो प्रॉफिट हुआ उससे उस सोसाइटी में स्कूल बनेगा, मार्केट्स बनेंगे, उस स्कूल्स में उसी सोसाइटी के टीचर्स एजुकेटेड पढ़ाएंगे, यूथ्स पढ़ाएंगे, वहीं के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहीं का जो प्रोडक्ट है वहाँ के मार्केट में सेल होगा और वहीं के लोग परचेजर रहेंगे। मोर और लेस अपने आप में एक सस्टेनेबल इकोनॉमी सेट हो जाएगी एक छोटे से विलेज में। एंड दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ नन अदर देन बेन एंड जेरी, एंड दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बी कॉर्प कंपनी इज। लिटिल लेटर इस कंपनी का सर्टिफिकेशन आने लगा कि हर वो कंपनी जो सोसाइटी के लिए अपना कंसर्न शो करती है उस कंपनी को ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और इस कंपनी का हमेशा एक ही मोटो रहता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को क्या किया जाए, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सो दैट वी हैव स्मॉल पॉकेट्स ऑफ सस्टेनेबल विलेज इन द सोसाइटीज। एंड अगर बात की जाए फरवरी 2024 तक में देयर वेयर 8,254 कंपनीज जिन्होंने वॉलंटियर किया। आप सभी जानते होंगे कि सारी कंपनियों को अब सोसाइटी के लिए काम करना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट दैट इज अ रूल कि अगर वो CSR नहीं ये करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको फाइन लगेगा। लेकिन बी कॉर्प कंपनी ऐसी कंपनी है जहां पे वो प्रॉफिट अपने आप अपनी इच्छा से शेयर कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, सो दैट एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी इज इक्वली बेनिफिटेड। दे आर थिंकिंग इन फेवर ऑफ सोसाइटी। These are the list of B Corp companies. बहुत सा नाम आप भी जानते होंगे। Procter and Gamble is there, Athleta is there, Albert is there, and lots of Ellen Fisher, ये सब नाम आपने सुना होगा। शायद आप इसे बी कॉर्प कंपनी के रूप में नहीं जानते होंगे, लेकिन 8,254 कंपनी, more than 162 इंडस्ट्रीज एंड 96 कंट्रीज में अब ये बी कॉर्प कंपनीज फैल चुकी हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक नए तरीके का रिवॉल्यूशन आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर द सस्टेनेबल सोसाइटी डेवलपमेंट। देन देयर इज अनदर वर्ड, डिसवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट क्या होता है? एनीवन? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सर आप लोग? एनीवन? मैडम? यस मैम। ये नो मैडम। डिवेस्टमेंट क्या होता है? जब इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस बाहर निकाल लिया जाता है तो डिसइन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। द थिंग इज दैट कि व्हेन वी पुट सम मनी, द सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर हम सभी पैसे खींच ले तो उसको क्या कहते हैं? डिवेस्टमेंट। और जैसे कि मैंने कहा ना सर कि रिवॉल्यूशन या मूवमेंट चलता है कोई बदलाव लाने के लिए, डिवेस्टमेंट भी एक ऐसा ही मूवमेंट है। ये किस तरीके का मूवमेंट है? ये एक अप्रोच है कि हर वो कंपनी जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है उसमें हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। पैसा नहीं लगाएंगे ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा था और मैं अपने पैसे वापस ले लूं तो ये प्रॉब्लम की बात है। किस तरीके से? यू जस्ट कैन इमेजिन, लाइक सपोज एज अ इंडिविजुअल सोनी तिवारी, अगर सपोज कीजिए किसी एक कंपनी का नाम लीजिए, जिंदल, सपोज आई एम टेकिंग अ नेम ऑफ द कंपनी जिंदल स्टील, ओके। मैंने उसके शेयर में पैसे लगा रखे हैं और कल मैंने अपने शेयर से पैसे निकाल लिए उससे, उसके शेयर्स मैंने बेच दिए। जिंदल को कोई फर्क पड़ेगा? सडनली नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सा क्यों? क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है। अब जरा सा सोचिए कि ये बात आ करके मैंने अपने कलीग्स और सबको कही कि वो कंपनी जो है वो तो फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है और इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रही है, हम लोग को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसकी जगह बेन एंड जेरी नाम की एक कंपनी आई है या ABCD नाम की कोई भी एक कंपनी आई है, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसा को। सो व्हाट विल हैपन? अगर आप इन्वायरमेंटल सेंसिटिव हैं तो मेरे 5 कलीग और खींच लेंगे उसमें से पैसा, isn't it? और वो 5 अगर और 5 को बोले, और सपोज कीजिए कि एट अ पर्टिकुलर टाइम 2 महीने के भीतर
उस कंपनी से 10,000 लोग अपना सारा शेयर वापस खींच ले, इन्वेस्टमेंट खींच ले, तो क्या उस कंपनी को फर्क पड़ेगा? Yes, Yes, ma'am. definitely Valuation yes, कम ma'am. करेगा. Yes, This पड़ेगा. is, yes, and this is what divestment revolution is. और अगर बात की जाए, क्योंकि समय अब कम है, तो मैं बहुत क्विकली जाती हूँ एक लिंक पे। 4 फाउंडेशन, मैंने कहा ना कि अगर मैं अपना पैसा खींच लूं, सोनी तिवारी और यहाँ पे जो भी मैडम सर बैठे हैं, प्रीति मैडम और एनीवन, बाकी का नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो द थिंग इज दैट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए सर कि अगर बिल और मिलिंडा गेट्स अगर किसी से अपना शेयर का पैसा खींच ले तो फर्क पड़ेगा? Yes, ma'am. क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट सर 1, 2 और 1000 और लाख का तो होता नहीं है, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ करोर्स। सो यू कैन फील लाइक रॉकेफेलो फाउंडेशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, गार्डियन मीडिया ग्रुप एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये 4 ऐसे बड़े फाउंडेशन थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, एंड दे सेड कि एनी कंपनी हु विल यूज फॉसिल फ्यूल, वी वोंट पुट मनी इन दैट कंपनी। इसके चलते क्या होगा, ऐसी हर कंपनी कोशिश करेगी कि हम फॉसिल्स फ्यूल ना यूज करें, कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करें, सो दैट वी कैन गेट द फंडिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज। सो द थिंग इज दैट बहुत क्विकली कि अगर ऐसा रेवोल्यूशन सेट हो जाता है, ये सब स्लाइड्स को मैं क्विकली स्किप करती हूँ कि भारत में बहुत कम ही इनिशिएटिव लिया गया है, मगर एक ग्राउंड रियलिटी आप लोग को नजर आ जाए। क्यों मैं कह रही हूँ कि इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन, कि इमेजिन कीजिए 3.4 ट्रिलियन मनी, not billion, 3.4 trillion money is already being divested from the companies which are using fossil fuel. So you all can imagine कि अपने आप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नए तरीके का होने लगा है। द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज ग्रीन टेक्नोलॉजी, एंड होपफुली फ्यूचर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो पॉइंट्स है, एजेंडाज हैं, हमारे डेवलपमेंट का तरीका बदलेगा, तो वी वुड बी एबल टू अचीव दोज गोल्स। एंड एक स्टेटमेंट है कि पहले आप जानते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैं वो फोटो यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ, इस स्लाइड में नहीं है, बट यू कैन सी कि एक तस्वीर आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, टाइम नहीं है नहीं तो मैं ही दिखा देती, कि जब पहली बार वाइट्स के रूम में पहला बच्चा जो पढ़ने आया था, एक निग्रो बच्चा, तो उसको किस तरीके से एक किनारे कमरा दे दिया गया था। उस कमरे में एक अलग से टेबल बेंच, जिसे कहते हैं ना अछूत की तरह व्यवहार करना, दैट वाज द सीन। लेकिन उसके बाद आज वर्ल्ड की क्या गति है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी की बात छोड़ भी दें तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे तो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। Officially we can't do that. So that particular movement of one student to a white class became the reason for the movement. Similarly अगर हम divestment movement भी जो है, अगर ये चल गया, ये सक्सेसफुल हो गया, तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट वुड बी बिकम अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड हम, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स कहे जाए तो कहीं ना कहीं तकरीबन 20 प्लैनेट और चाहिए, बट वी डू नो कि वी डोंट हैव एनी प्लैनेट। और ये जो इतनी बातें, इतना कंसर्न, इस पे क्लासेस जो हो रहे हैं, ये लाखों पैसा गवर्नमेंट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म करोड़ों पैसे खर्च कर रही है, इट्स नॉट फॉर द केयर ऑफ प्लैनेट, ट्रस्ट मी, प्लैनेट इज ऑल फाइन, we people are selfish, and that's why we have to make this planet habitable for our future generation, and that's why we are caring for this planet. Remember, the bottom line is there is no planet B. We have to live on this mother earth only, and we have to take care of our development pace to meet the need of present generation without compromising the ability of the needs of future generation. That's the thing I have to say. Thank you very much. एंड अगेन एट लास्ट मैं हमेशा इस बात को फील करती हूँ, आप सभी ज्ञानी हैं, एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर व्यू। अगर मैं सही नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ तो आपका क्या व्यू है, आई वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल।
वंडरफुल सेशन मैडम, बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ मैडम। थैंक पार्टिसिपेंट्स यू। आपको कुछ क्वेरी है तो पूछिए। किसी की तरफ से या कोई और अपनी इस डायमेंशन में कोई नई बात कहना चाहते हो जो मैंने ना कहा हो? अशोक सिंधे सर हैज रेज्ड हैंड। अशोक सर। सर बोलिए, आपकी कुछ क्वेरी है तो बोलिए अशोक सर। मे बी बाय मिस्टेकनली। Okay, make it. बाय मिस्टेक हो होगा मैडम। Okay, make it. Hello, madam. नो इश्यूज। That's it. Yes, sir. Hello. Madam, as the whole talk that is depend upon the sustainable development, can that is sustainable development that we have discussed for the state or country or globe, can we it is compare with the as a single person? What could be the sustainable for the development of the single person? That's the thing. That's the thing. how I would say, sir, I am not recollecting the name right now. What his name was? He was just a sec. The Green Man of India. If you want, can see IIM के जो professor हैं. Yes, yes, madam. No, not. No, I'm not talking about green revolution. The solar man of India भी उन्हें कहा जा रहा है, जो solar energy पे बहुत focus करते हैं. Just a sec. Quickly, I am giving that idea. Wait. Sir, बघेल काय? Sonam Wangchuk. शुभजीत मुखर्जी. शुभजीत no, मुखर्जी. no. Just a sec. I think- think he's from Maharashtra only. यस मैम, शुभजीत मुखर्जी मैंने सुना था. Solanki. Some Green Solanki sir is there. ग्रीन मैन. Solar man. सोलर. ओके. Wait. Chetan Solanki. His name is Chetan Solanki. Just a sec. जिन्होंने की एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया है. चेतन सिंह सोलंकी. Just a sec. I'm not getting it. चेतन सिंह सोलंकी. Yeah, Chetan Singh Solanki. Very true. You all can see over here. Are you getting? Chetan Singh Solanki. अगर आप लोग इनसे नहीं अवेयर हो तो कोशिश करेंगे इनके बारे में जानने की. नेट पे इन्होंने एक बस ले रखा है और वो ऑल ओवर इंडिया टूर करते हैं सोलर एनर्जी के अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए. सो मैं इनको क्यों रेफरेंस में ला रही हूँ? द थिंग इज दैट आई एम स्टॉप शेयरिंग ओवर हियर. चेतन सिंह सोलंकी आप सभी लोग देखेंगे एंड यू विल फील. सर आपने जो बात कही कि एज ए इंडिविजुअल व्हाट वी कैन ऐड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द थिंग इज दैट वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी और हम जो नॉर्म अपने लिए सेट करेंगे वही सोसाइटी का नॉर्म हो जाएगा. अब इमेजिन कीजिए सर, हम लोग जो सो कॉल्ड आप सभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वी आर टीचर्स एंड वी आर प्रोफेसर्स. द थिंग इज दैट वी गेट जनरल सैलरी ऑफ lakh and above, lakh, 2 lakhs और 3 lakhs in the rank of professor. ऑल ओवर इंडिया यही ट्रेंड है. हम कितने वेल ड्रेस्ड होते हैं. अगर एज मीन्स मैं कोई रिमार्क नहीं दूंगी, मेल फीमेल कोई भी शौकीन हो सकता है, तो आई थिंक नहीं में भी तो 50 कपड़े रखे होंगे, 10 तरीके के जूते रखे होंगे हमने. द थिंग इज दैट सोलंकी हैज पुट अ पॉइंट कि हम जब एक आयरन किया हुआ कपड़ा यूज करते हैं तो उसमें 200 पेड़ के बराबर की एनर्जी चली जाती है. आप पूछिएगा ऐसे कैसे, इतना तो नहीं होता है मैडम. सो यू जस्ट इमेजिन, आयरन करने में क्या सिर्फ आयरन करने की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई? आयरन करने में सर वो जो प्लास्टिक बनाने की कंपनी थी उसका भी तो कॉस्ट आ गया. वो जो उसमें आयरन लगा हुआ था उसका कॉस्ट आ गया. वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ट्रांसफार्मर सेट हुआ था उसका कॉस्ट आ गया. इवन इफ वी डू ब्रश आवर टीथ, सो यू ऑल कैन इमेजिन कि एक ब्रश के बनने में कितना ज्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर है. एंड दिस इज व्हाट एज अ पर्सन वी कैन डू. डॉक्टर सोलंकी सेड कि वो आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनते हैं. आजकल ये नया ट्रेंड आ रहा है, सोसाइटी इस तरफ जा रही है. यू माइट हैव सीन कि सर एक शादी होती है और लाखों करोड़ों खर्च हो जाता है. वी हैव सीन द मैरिज फंक्शंस जिसके ग्लिम्सेस हम लोगों को सोशल मीडिया पे मिलते रहते हैं ऑफ अंबानी जनरल. डन.
द थिंग इज दैट कि अगर हर एक व्यक्ति सोसाइटी का डिसाइड कर ले कि मैरिज को इतना एक्स्ट्रा वैकेंट करना ही नहीं है, सिंप्लिसिटी से करना है, अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग डिसाइड कर लूं कि मुझे हार्डली 5 सेट ही कपड़े रखने हैं, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करना, दिस इज इन द हैंड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगी, कभी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे, मुझे लगता है कि शायद ये नागपुर का ही प्लेटफॉर्म था, कि वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज सेड कि मैडम मैं बाजार में झोला लेकर के जाता था, प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं यूज करता था। धीरे धीरे वहां बाजार वाले कहने लगे अरे वो झोला वाले प्रोफेसर साहब आ गए। And what happened? He said, little later, मेरे नेबरहुड में भी सब लोग झोला लेके जाने लगे, और मोर और लेस एटलीस्ट फॉर दैट पर्पस प्लास्टिक का यूज जो है हमारी सोसाइटी में बंद हो गया है। सो दैट कुड बी द इनिशिएटिव ऑफ वन पर्सन कैन लीड टू अ रिपल इफेक्ट। एक जो कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर हम एक छोटा सा भी स्टेप लेते हैं तो इसके कंसिक्वेंसेज बेटर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे इंटेंशन सही हो। तो certainly as an individual also we can set example, at least not for the society, then even for my family or even for my the upcoming generation. And अगर एक व्यक्ति कोशिश करेगा तो you will feel that sir कि अगर वो कोशिश में सच्चा है तो कई लोग साथ लग जाते हैं। डॉक्टर सोलंकी का रेवोल्यूशन या स्वराज फाउंडेशन एक व्यक्ति का ही इनिशिएटिव था। So we all can take inspiration from those sort of things and we can work out at our capacity. हम जिस गति में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वहीं से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं towards environmental protection. अब आपने एक एक इंडिविजुअल स्टेप को भी जरा सा आप देख लीजिए। पॉवर्टी, सर्टनली सोसाइटी से तो पॉवर्टी मैं नहीं हटा सकती हूँ सर, बट इफ आई एम इन अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंडीशन, can't I bear the expenses of my maid's child's educational expenditure? If I am having one baby, suppose I had one boy only or one girl only, और का कॉन्सेप्ट होता, और मैं किसी सोसाइटी के किसी भी एक पुअर बच्चे का खर्चा उठा लूंगी, तो सर भले ही पूरी सोसाइटी पे असर ना पड़ेगा, वो एक परिवार का कंडीशन तो बदल जाएगा। So certainly if there is a will, there is a way. अगर हम सच में सीरियस हैं, हम सच में कंसर्न हो गए, we can make change in the society. This is what my take is. Yes, madam, very true. और ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो सर समाज के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास कहलाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग सेंसिटिव रहें towards society, towards nature, and towards the member of the society as well. This is what my take is. Yes, madam. Done. Anyone else? और कोई question? या आप में से कोई जो अपनी बात कहना चाहते हो जिसके रिगार्डिंग, ताकि मैं भी फील करूं कि हाँ मैंने भी कुछ सीखा है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे इन प्लेटफॉर्म पे कई बार नई चीजें सुनने को मिलती हैं। यस पल्लवी जी। मैम आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है, क्योंकि अब जिस फैमिली बैकग्राउंड से अगर मैं भी आती हूँ तो हमारे यहाँ पे भी यही कल्चर रहा है कि शेयरिंग है, ज्यादा ग्लैमर नहीं जाना है। लेकिन आज जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं या जिस प्रोफेशन को हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑल्सो द लास्ट इम्प्रेशन विच वी हैव टू क्रिएट इट ऑन द स्टूडेंट्स माइंड, तो ये सब चीजों में हम लोग कैसे, एक कहीं ना कहीं एक टैसल है, कहीं ना कहीं एक रोज की लड़ाई है कि मन कुछ और कहता है लेकिन कहीं दिखावे की जिंदगी भी हमको जीने पड़ रही है। तो ऐसे समय पे हम लोग कैसे करें मैम? वेरी ट्रू पल्लवी मैडम, आई डू अग्री। लेकिन एक कहा जाता है ना कि मैं फिर कहूंगी उस फोर्थ पिलर की बात लाऊंगी कि जो चीजें भूल गई थी कोविड के बाद हम लोगों ने सोसाइटी का एक चेंज रूप देखा था। दो अगेन आई वुड से कि मैन काइंड इज सच अ थिंग ना, कि वो कहा जाता है ना अहम ब्रह्मा अस्मि, मतलब जो गुड्स है वो भी मुझ में है, जो बैड्स हैं वो भी मुझ में ही है। आई एम द डेटी, मैं ही देवता भी हूँ, मैं ही दानव भी हूँ। सो द थिंग इज दैट कि
we have to certainly, our society had to reconsider कि ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी में सक्सेस का पैरामीटर हम लोगों ने बना दिया है, डेवलपमेंट का पैरामीटर बना दिया है, उसको रिकंसिडर करना होगा। और मैडम अगर मैं फिर कहती हूँ, हर एक चीज को अगर आप एनालाइज करके देखिए, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैप्पीनेस इंडेक्स को एक पैरामीटर माना जाने लगा है, तो यू कैन इमेजिन कि माइट बी कि इट विल टेक टाइम, हमारी सोसाइटी भी इनर पीस को और ह्यूमैनिटी को शायद डेवलपमेंट का बड़ा इंडेक्स मानेगी इन कमिंग डेज, बट इट विल सर्टनली, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सेम। Thank you so much, ma'am. Yes, Dr. Prashant. Madam, namaste. Really wonderful session. I am Thank you, truly sir. agree with Pallavi madam. But एक बात मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि मैं जो करता हूँ, कि आई डिड स्ट्रगल लॉट, वो तो बात अलग ही है, बट सस्टेनेबल खुद को रहना है, उसकी डेफिनेशन मैडम खुद को ही बनानी पड़ेगी। क्योंकि रास्ते में अगर कोई मान के चलो एक गरीब बाजू में जो कुछ कहीं तो भी कलेक्ट करके खाना खाते रहता है, वो बहुत हैप्पी दिखता है, और हम लोग जो कार में अच्छे मतलब BMW में चल रहा है, तो उसके सर के ऊपर ऐसे, चेहरे के ऊपर ऐसे स्ट्रेस रहता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो सस्टेन अगर अपने आप को करना है ना मैडम, तो मैं जनरली मैं फॉलो क्या करता हूँ, जैसे मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी में वर्किंग में हूँ, मैं चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी पापा 70+ है, बट मैं जैसे यूनिवर्सिटी में आता हूँ, घर की बटन्स में बंद कर देता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में अगर हूँ और वहां से मैं 80 किलोमीटर दूर हूँ, तो वहां पर मुझे कॉल जब कुछ भी पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, मैं तुरंत कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को रिलैक्स करके मैं बटन्स बंद कर देता हूँ। जब यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी का वर्क देखता हूँ, और जैसे घर गया तो मैं यूनिवर्सिटी के जितने भी वर्क है उनके बटन ऑफ कर देता हूँ, और मैं घर के बारे में सोचता हूँ। तो सस्टेन रहना बहुत अच्छा टॉपिक था कि आपने जो बोला ना, ऊपर में थोड़ा सा आइसबर्ग था, तो वो थोड़ा सा आइसबर्ग दिखने दो, अंदर अपने स्ट्रेस अपने अंदर रखो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, बटन्स क्लोज करते रहो, सब लोग हैप्पी रहेंगे और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ते रहेगा मैडम जी। Thank you. Very nicely said, Prashant sir. And again, I do agree with you on this very take. और एक जो कहा जाता है ना मैडम, देखिए एग्जाम्पल्स तो हर तरीके के हैं। कहा ही जाता है कि वी आर रिच इन डाइवर्सिटी। यू ऑल माइट हैव सीन कि IIT के प्रोफेसर जब मध्य प्रदेश के गांव में जा करके एकदम नेचर से रिलेटेड लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए ये सो कॉल्ड सोफर ड्रिवन कार्स और थाउजेंड्स एंड लैक्स रुपीज की सैलरी वोंट मैटर। तो इवन ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। सो सर्टनली कहीं ना कहीं सभी तरीके के एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में हैं। और एक सीधी सी बात कहती हूँ कि मैं 3 लाख रुपए महीने कमा रही हूँ, और माइट बी पॉसिबल कि मेरी मेड जो है वो 3,000 रुपए महीने कमा रही है। महीने का है, परेशानियां हो सकता है कि हम लोग अलग अलग फेस करते हों, लेकिन हैप्पीनेस का जो कोसेंट है मैडम, वो कहीं ना कहीं वो पैरामीटर, इट माइट बी पॉसिबल कि डिस्पाइट हैविंग 3 lakhs आई माइट नॉट बी दैट मच हैप्पी as she may be, as she may be, again I am saying may be. So the thing is that कि ये हमको डिसाइड करना है कि हम अपनी किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं। और अकॉर्डिंगली जैसे अभी सर ने कहा, प्रशांत सर ने, कि हमको अपना सस्टेनेबिलिटी रूल खुद तय करना होगा, देन ओनली वी कैन ऐड टू द इंटरनेशनल सस्टेनेबल सोसाइटी। स्नेहा जी, आई थिंक प्रीति मैडम, मैं समय बहुत ले रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन बाय स्नेहा वन। यस मैम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्नेहा मैडम बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आपका सेशन बहुत बहुत अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम, यहाँ पर हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब कभी हम बात करते हैं किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की, तो उसमें हमेशा डिग्रेडेशन जो होता है, दैट इज एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। तो मैम, आपने स्टार्टिंग में एक चीज कही कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है या नहीं। कई लोगों ने इसका आंसर यस दिया है, कई लोगों ने नो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैम कि पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए है, और उसके लिए होना चाहिए हमारा स्ट्रिक्ट लॉ। अगर हमारे जो लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अगर डिसिप्लिन इतने हो जाए, एंड इफ यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम सबसे ज्यादा सेल्फिश प्राणी है इस धरती पर। तो अगर हम थोड़े डिसिप्लिन हो जाए, और हमारे जो
ऑल कंट्रीज है, चाहे वो एशिया हो, यूरोपियन कंट्रीज अगर है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाए इन सब के मामले में, तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी भी पॉसिबल है. इट्स अ हाई टाइम where we are supposed to address this environmental issues in order to make this earth again a living and beautiful planet. ऐसा मुझे लगता है मैम. श्रद्धा ठाकर जी भी आपसे सहमत है, लेकिन यहाँ पे स्नेहा जी कुड भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत या मैं सही, मगर ओपिनियन डिफर हो सकता है. आपने कहा कि लॉ मेकिंग, समवेयर इट इज माय पर्सनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इट डजंट मैटर कि व्हाट एवर लॉ और हाउ मच स्ट्रॉन्ग लॉ यू मेक, if it doesn't comes from inside, no law can protect the or can bring the change in the society. ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट. अगेन मैं कहूंगी, रीजन में कहती हूँ कि मैंने कहा कि बी कॉर्प कंपनीज की बात मैंने की, और मैं ये दो चीजों को, डिवेस्टमेंट को और बी कॉर्प कंपनीज को हमेशा प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बी कॉर्प कंपनीज मैडम हमारे ही और आपके जैसे एक साधारण आदमी ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया. ठीक है, ही वाजंट अ रिच मैन, ही जस्ट थॉट कि हमको सोसाइटी के फेवर में काम करना है. और लॉ की जहां तक बात है मैडम, तो आप देख लीजिए कि कितने भी स्ट्रॉन्ग लॉज बना लिए जाते हैं, क्या वो मल्टीनेशनल कंपनीज उसको मैनिपुलेट नहीं कर लेती हैं? और आप सबसे वर्स्ट छोड़िए ना, एकदम सबसे सिंपल लॉ इमेजिन कीजिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मेन एंड वुमेन एंड इवन एवरीवन फिजिकली और पीपल्स विथ स्पेशल नीड्स, दे ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. सब कुछ होते हुए, मैं इसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हूँ, आप सभी भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पोस्टेड होंगे. Don't we feel gender discrimination many a time in our immediate society, जबकि हम लोग so called educated society हैं? So this is, it doesn't matter कि लॉ कितने भी बना लिए जाए, जब तक ये सोसाइटी के लोगों से वो सेल्फ सेंसिटिवनेस नहीं आएगा, नथिंग विल वर्क आउट. जब तक हम मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट को वैल्यू देते रहेंगे, we won't be able to achieve the sustainable goal. The moment we would stop thinking differently, we would stop thinking in the direction towards humanity, then only we can achieve those goals. Otherwise जो present condition है मैडम, उसमें तो ये जल्दी अचीव होता नजर नहीं आ रहा है. But options are always there. Good people with good deeds and good thoughts are always there. And certainly as a human being or as an intellectual or people from academia, हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट के चलना चाहिए. और कम से कम हर एक व्यक्ति की, हर एक टीचर का ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ पर्सनली. होपफुली आई. यस मैडम, यस. सो हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं. मैडम आई एम रियली सॉरी कि आज सेशन थोड़ा डिस्टर्ब रहा नेट के चलते. नहीं मैडम, एक बार हो गया था ना वो सेट, फिर कोई दिक्कत नहीं आई. आपने जो कनेक्शन चेंज कर दिया, फिर ये मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया. उसके बाद स्मूथली कंडक्ट हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. थैंक यू सो मच मैम. Again from all the participants. Thank you so much madam. Have a nice day ma'am. Thank you. Bye ma'am. Thank you ma'am. Friends, you can leave the meeting because next session participant has joined the meeting. See you all tomorrow at 10:30 for our next classes. Thank you very much. Thank you madam. Thank you madam. शेड्यूल आपने डाला नहीं है ना मैम अभी तक? शेड्यूल में इवनिंग को डालती हूँ मैडम. कल अपना रेगुलर टाइमिंग ही रहेगा.